Hello friends, in the last lecture we have discussed about some physical laws of combustion like law of conservation of mass, ideal gas laws, Avogadro's law. We have also seen the basic combustion reaction in which we have calculated the amount of oxygen required to completely burn 1 kg of carbon, 1 kg of hydrogen and 1 kg of sulfur. Okay, and we have also seen the composition of dry air by volume basis and by mass basis. And we have also derived a one formula, that is minimum amount of air required for complete combustion of solid or liquid fuel in terms of percentage composition of fuel by mass. Okay, so in today's lecture we are going to discuss some important parameters related to combustion only, and also we are going to solve couple of problems on combustion. So these are the contents of today's lecture: complete and incomplete combustion processes, stoichiometric air and excess air, air fuel ratio, stoichiometric air fuel ratio, products of combustion and problems on combustion. Okay, so the first topic is complete and incomplete combustion processes. Okay, so when the combustion process is said to be complete or incomplete, कब हम combustion process को बोल सकते हैं कि complete हो गई या नहीं हुई है? Combustion is a process in which fuel is oxidized. Okay, मतलब फ्यूल में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं. अगर फ्यूल में जो एलिमेंट्स है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गए तो हम बोलेंगे कि जो कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, और अगर वो जो फ्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं हुए तो हम उनको बोलेंगे कि कंबशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है. नाउ फ्यूल जनरली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड समटाइम इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल percentage of sulfur also, especially in the solid fuels. Okay, so if the carbon is present in the fuel, then it must be burned completely to CO2. If hydrogen is present in the fuel, it must burn completely to water vapor, and if sulfur is also present, then it must burn completely to sulfur dioxide. By completely, what does mean? Other products such as carbon monoxide, hydroxide or plain carbon or hydrogen should not be reflected in the products of combustion. Okay, so basically a combustion process is said to be complete when all the carbons in the fuel burns to CO2, all the hydrogen burns to H2O, and all the sulfur, if any, present in the fuel burns to SO2, and it is said to be incomplete when the combustion products contains any unburned fuel or components such as plain carbon or hydrogen or carbon monoxide or hydroxide. Okay, so प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन क्या मिल रहे हैं उसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि वेदर आवर कम्बशन प्रोसेस इज कंप्लीट और नॉट. तो कंप्लीट कम्बशन प्रोसेस में हमको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन मिलेंगे CO2, SO2, H2O, और CH2COOH ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे. और अगर हम बात करें इनकम्प्लीट कम्बशन के, तो वहाँ पर CO2, H2O, SO2 मिलेंगे सर्टेन अमाउंट में, but due to insufficient supply of oxygen apart from CO2, H2O and SO2, also we will found products like CH2CO or OH. Okay, now what can be the reason for the incomplete combustion of the fuel? So it can happen due to following reason. So first and obvious reason is insufficient supply of oxygen. Okay, so अगर हम ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत हम ऑक्सीजन सप्लाई करें उससे थोड़ा बहुत CO2, थोड़ा बहुत H2O बन जाएगा, बट बचे हुए फ्यूल के कंपोनेंट्स के लिए हमको ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट नहीं रहा तो फिर इस तरीके के अनबर्न प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे. दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? हमने जो ऑक्सीजन सप्लाई की है या फिर एयर जो सप्लाई की है वो मिनिमम क्वांटिटी से ज़्यादा की है, डेट इज स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से ज़्यादा कर रहे हैं, स्टिल वी आर गेटिंग सम अनबर्न फ्यूल और कंपोनेंट्स इन द प्रोडक्ट. व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दिस? इनसफिशिएंट मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर इनसाइड द कंबशन चैम्बर. ठीक है, तो मतलब हमने एयर तो सफिशिएंट सप्लाई किए हैं जो कि फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न कर सकता है, बट कंबशन चैम्बर के अंदर उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिला या प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ. तो ऐसा कब होता है? डीजल इंजन में, जहाँ पर हमको हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है. ठीक है, तो आपको पता रहेगा ऑटो साइकिल में एयर और फ्यूल को हम कार्बोरेटर में मिक्स करते हैं, इन दैट केस द mixture obtained is homogeneous mixture, but in case of diesel engine heterogeneous mixture is formed, and due to limited time of the cycle, because जो पावर साइकिल्स है वो लिमिटेड टाइम में ऑपरेट होती है, उनके जो आरपीएम्स रहता है उन साइकिल का, तो पर सेकेंड सर्टेन साइकिल ऑपरेट होती है, तो
उस कंबशन प्रोसेस को अच्छी तरह से कंप्लीट होने के लिए सर्टेन टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर हम वो प्रॉपर टाइम उसको नहीं देंगे तो एयर टू फ्यूल प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, या फिर कहीं पर फ्यूल का रेशो ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर एयर का रेशो ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, सो उस वजह से भी इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है। एंड थर्ड रीजन इज डिसोसिएशन विच बिकम्स इंपॉर्टेंट एट हाई टेम्परेचर। सो बाय डिसोसिएशन वी मीन्स ब्रेकिंग ऑफ सम गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो डिसोसिएट मतलब अलग होना। तो at high temperature there may be a possibility that flue gases formed as a product of combustion may become unstable at high temperature and their bonds may break and they may separate to some unburned fuel or component. Okay, so this may be the third reason. Now it is generally observed that hydrogen in the fuel normally burns to the completion, forming water vapors, and even when there is less oxygen than needed for complete combustion. Why this happens? Because oxygen has more affinity to combine or to make bond with the hydrogen as compared to carbon. Okay, मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी एबिलिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, किसके कंपैरिजन में? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के। मतलब ऑक्सीजन के सामने अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को रखते तो पहला प्रेफरेंस हाइड्रोजन को देगा अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वजह से अगर किसी केसेस में हम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ओके, इवन इफ वी सप्लाई लेस ऑक्सीजन देन नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन, देन स्टिल देयर इज अ चांसेस दैट हाइड्रोजन in the fuel will burn completely to the water vapor, because first oxygen will give preference to hydrogen, and once all the hydrogen in the fuel is burned completely and it will form the water vapor, then the remaining oxygen will try to make the bond with the carbon. Okay, and if we supply insufficient amount, then the result of combustion process would be formation of unburned carbon fuel components like carbon particle itself, soot, which is generally we get in the diesel engine, and also carbon monoxide. Okay, so some of the carbon however ends up as CO or just as a plain C particles, that is soot in the products. Okay, so now the next topic is stoichiometric air and excess air. So actually we have already seen this topic, stoichiometric air. It is nothing but the amount of air needed for complete combustion of fuel. It is also called as minimum amount of air or theoretical amount of air or chemically correct amount of air required to burn the fuel completely. Okay, now for ideal combustion process, if the fuel is burned completely with the minimum amount of air or stoichiometric amount of air, then that process of combustion is called as stoichiometric combustion or theoretical combustion of the fuel. Okay, अब यहाँ पर एक word use किया गया ideal combustion. Now what does we mean by ideal combustion? तो इसका मतलब है ideal केस में combustion हो रहा है, मतलब हमने ऑक्सीजन जो है वो मिनिमम अमाउंट में सप्लाई की, उससे ज़्यादा भी सप्लाई नहीं की है। दूसरी चीज़, जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो प्रॉपरली मिक्स हुआ है और होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हुआ है, और कुछ भी डिसोसिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स नहीं हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ अगर नहीं होगी तो हमको कंप्लीट कंबशन मिलेगा इवन आफ्टर सप्लाइंग मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर, थ्योरेटिकल एयर। सो सच आइडियल कंबशन प्रोसेस would be called as stoichiometric or theoretical combustion of the fuel. Okay, and as we have already discussed that even after supplying excess amount of air in practical situation, we may still get unburned fuel in the product. Now, in order to avoid the unburned fuel in the product, or we can say in order to achieve the complete combustion, or I can say in order to increase the chances of complete combustion, we generally supply more air than a stoichiometric amount. So the amount of air which is supplied in excess to the minimum amount or stoichiometric amount of air, that excess amount of air is nothing but called as excess air, and the total amount of air which is supplied is called as actual air. So excess air is nothing but actual amount of air minus stoichiometric amount of air supplied. Okay, the next thing we have air to fuel ratio. So as the name indicates, it is nothing but the ratio of mass of air used during the combustion to the mass of the fuel. Okay, and it is the reciprocal of fuel air ratio, which we have already seen in the IC engine. So it is mass of air divided by mass of the fuel. Next we have stoichiometric air fuel ratio. So it is defined as ratio of minimum amount of air or theoretical amount of air to the mass of the fuel. Okay, now if the actual air fuel ratio is less than stoichiometric air fuel ratio,
then the product of combustion formed will be CO2 and CO in case of theoretical combustion. Okay, here I am talking about theoretical combustion only. मैं यहाँ पर सिर्फ theoretical combustion की बात कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि हमारा assumption ये है कि फ्यूल प्रॉपरली मिक्स हो रहा है, उसका में डिसोसिएशन नहीं हो रहा है. सो इफ़ फ्यूल का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉपरली मिक्स हो रहा है, लेकिन हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर से कम अमाउंट में एयर सप्लाई किया, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फॉर्म्ड वुड बी CO2 एंड CO. ओके, एंड इफ वी हैव supplied exactly the stoichiometric amount of air, then in that case air fuel ratio would be equal to stoichiometric air fuel ratio, and the product of combustion formed would be CO2. Okay, and in this case the combustion process would be called as theoretical combustion process. And if air fuel ratio is more than stoichiometric air fuel ratio, then the products of combustion formed will be CO2 and O2. Okay, फर्स्ट केस अगर हम देखेंगे कि एयर फ्यूल रेशियो इज लेस देन स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, मतलब जो एयर की क्वांटिटी जो है पर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्यूल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. देन सेकेंड केस, अगर हमने एग्जैक्टली मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई किए और वो थ्योरेटिकल कंबशन है या फिर आइडियल कंबशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फॉर्म वुड बी ओनली CO2. नाइदर कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म, नाइदर ऑक्सीजन विल बी फॉर्म्ड. एंड थर्ड केस, अगर हमने एक्सेस एयर सप्लाई किया और जो कंबशन हो रहा है वो आइडियल कंबशन है या फिर थ्योरेटिकल कंबशन है, तो उस केस में क्या होगा, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करने के वजह से तो सारे प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे, CO2, H2 एक्सेट्रा. बट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने सप्लाई की रिएक्टेंट में, वो एज इट इज़ हमको प्रोडक्ट में मिल जाएगी जिस तरीके से नाइट्रोजन मिलता है. ठीक है. सो अगर हम थ्योरेटिकल कंबशन की हम बात कर रहे हैं अगर, तो हम कंबशन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये कैसे जज कर सकते हैं, ये कैसे जज कर सकते हैं, बाय सीइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन. अगर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में CO है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट है. और अगर सिर्फ CO2 दिख रहा है तो हम बोलेंगे कंप्लीट कंबशन है. और अगर CO2 और O2 दोनों मिल रहे हैं तो कंप्लीट कंबशन है, और साथ ही साथ एक्सेस अमाउंट में एयर भी सप्लाई की गई है. ओके, तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन हम आसानी से कब जज कर सकेंगे, जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी. पहली कंडीशन, कंबशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. दूसरी कंडीशन, हमको एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर और एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्यूल पता होना चाहिए. ठीक है. तो जब हमको एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर और एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्यूल पता रहेगा तो हम स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो निकाल सकेंगे, एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो निकाल सकेंगे और जज कर पाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन क्या होगा. ठीक है. अगर जब व्हेन द कंबशन प्रोसेस इज कंप्लीट. But if the combustion process is incomplete, as in the practical cases, due to the insufficient supply of oxygen or due to improper mixing, then normally it is not possible to predict the products of combustion. क्यों ऐसा? Because properly mixing नहीं हुआ, उसकी वजह से अनबर्न्ड फ्यूल मिल रहा है हमको. उसमें हमको ऑक्सीजन भी मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है. मीन्स तीनों भी चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं, क्योंकि कुछ कंबशन चैम्बर में जो पार्ट फ्यूल और एयर का कांटेक्ट में आ गया वो तो प्रोडक्ट बना देगा, बट कुछ ऐसा पार्ट रहेगा जो ऑक्सीजन का, जो फ्यूल्स के कांटेक्ट में नहीं है, वो ऑक्सीजन एज इट इज़ हमको प्रोडक्ट में मिलेगी. सिमिलरली कुछ ऐसा पार्ट रहेगा कार्बन का जो कि एयर के कांटेक्ट में नहीं आया, तो वो एज इट इज़ कार्बन हमको मिल सकता है कहाँ पे, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन में. तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से कितना % कार्बन बन रहा है, कितना % कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कितना % कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये हम कैसे जज करेंगे? हम नहीं कर सकते इवन आफ्टर यूजिंग मास बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि मास बैलेंस इक्वेशन तो सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि रिएक्टेंट साइड में कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, प्रोडक्ट साइड में कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे. बट वो जो कार्बन है प्रोडक्ट में, वो प्योर एलिमेंट के फॉर्म में है, CO के फॉर्म में है या फिर CO2 के फॉर्म में है, वो हमको नहीं पता. तो इसके लिए हमको ओनली अल्टरनेटिव वी हैव इज वी हैव टू एनालाइज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. हमको प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को बाय यूजिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट हमको एनालाइज करके उसका कंपोजिशन निकालना पड़ेगा. ओके, एंड वी नीड टू मेजर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन द प्रोडक्ट डायरेक्टली. दिस इज द ओनली अल्टरनेटिव वी हैव, and in order to measure the amount of each component in the product directly,
we use one apparatus called as Orsted gas analyzer. Okay, Orsted gas analyzer एक ऐसा apparatus है जो कि product of combustion को analyze करके हमको ये बताता है कि कंबशन के जो प्रोडक्ट्स है उसमें CO2 कितने अमाउंट में है, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने अमाउंट में है। अब ये ऑर्सेड गैस एनालाइज़र एक्चुअली हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा इसके डीप में जाएंगे नहीं और उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह में हम जाएंगे नहीं, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बात ऑर्सेड गैस एनालाइज़र से रिलेटेड ध्यान रखना है। जो भी ऑर्सेड गैस एनालाइज़र के रिजल्ट हमको आउटपुट में मिलता है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ कंबशन गैसेस, जो भी हमको मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कंपोजिशन जो रहता है वो कंपोजिशन बाय वॉल्यूम रहता है, इट इज़ नेवर कंपोजिशन बाय मास। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है हमको। एंड सेकेंड पॉइंट, ऑर्सेड गैस एनालाइज़र हमेशा ड्राई फ्लू गैसेस का एनालिसिस करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई फ्लू गैसेस? ओके, तो कंबशन के प्रोडक्ट्स में हमको क्या क्या मिल सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ओके, ड्यू टू कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल। अब वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर जो प्रोडक्ट है वो वेट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कहलाता है, और वाटर वेपर को छोड़ के बाकी जितनी गैसेस हैं उन सभी को हम बोलते हैं ड्राई फ्लू गैस। ओके, तो जो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑर्सेड गैस एनालाइजर देता है उसमें वाटर का कैलकुलेशन नहीं रहता या वाटर का अमाउंट नहीं रहता। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमको वाटर वेपर कंबशन प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर कार्बन के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के भी मिलेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू कंबाइन विद द हाइड्रोजन एज कंपेयर टू कार्बन। It will give first preference to combine with hydrogen, and then once the oxidation of hydrogen is complete, then it will start making bond with the carbon. Okay, so this is the some important theoretical concepts of combustion. Now let's solve couple of problems on combustion. Okay, now see the statement of first problem. The product of combustion, that is dry flue gas of unknown hydrocarbon CXHY, have the following composition as measured by Orsted apparatus. CO2 is equal to 8%, CO 0.9%, oxygen 8.8%, nitrogen 82.3%. Determine composition of the fuel, air fuel ratio, percentage excelsior used. ठीक है, तो क्वेश्चन को हम एक और बार ध्यान से देखेंगे। तो इसमें हमको बोला है कि एक ऑर्सेड गैस एनालाइजर में हमने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का एनालिसिस किया, ड्राई फ्लू गैस का एनालिसिस, और एनालिसिस करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला। अब इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया नहीं है कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है बाय वॉल्यूम है या बाय मास है। अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए रिगार्डिंग ऑर्सेड गैस एनालाइजर, दैट इट ऑलवेज गिव परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। ओके, नाउ केयरफुली ऑब्जर्विंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, यहाँ पर CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब एक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल कंबशन। थ्योरेटिकल कंबशन में एट ए टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों नहीं मिल सकता, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन को शो करता है और ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट शोज कंप्लीट कंबशन, बट दोनों ही चीजें एक साथ हो रही है। इसका मतलब है सफिशिएंट एयर भी थी फ्यूल को बर्न होने के लिए, बट ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोडक्ट में आया, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट में आया और ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट में आया। और क्वेश्चन देख के भी, अगर थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्सेस एयर भी यूज हुई है। तो still there is a formation of carbon monoxide, that is unburned fuel. It means this is the problem of practical or the actual combustion process. Okay. अब क्योंकि यहाँ पर जो product of combustion by volume दिया हुआ है और यहाँ पर कहीं पर भी actual amount of air use और actual amount of fuel use नहीं दिया हुआ है, तो जो भी हम कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले हैं वो पर kg ऑफ फ्यूल बेसिस पे करने वाले हैं। ठीक है, और क्योंकि ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम एनालिसिस है and volume is directly proportional to number of moles and we have not give the actual amount, so हम अपने convenience के हिसाब से number of moles in volume composition को equivalent number of moles में convert कर सकते हैं। Either I can consider 1 mole as 100% or also I can consider 100 mole as 100%. Okay, so for simplicity what I have assumed कि ये जो CO2 8% बना रहा है by volume, तो मतलब प्रोडक्ट में 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज एज पर एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट कंबशन इक्वेशन फॉर दिस अननोन फ्यूल CXHY. ओके,
सो कंबशन इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, हमको फ्यूल को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, तो हमको ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई करें, हम एयर से। तो जब हम ऑक्सीजन एयर से लेंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ फ्रीली हमको 3.76 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी मिलता है, जो ये हमने देखे थे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई एयर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब O2 प्लस 3.76 N2, ये है क्या बता रहा है, एयर को शो कर रहा है ये चीज़। ना कितने मोल में हम एयर ले रहे हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स एज आउटपुट इज Z, ओके। कितने अमाउंट में लग रही है एयर वो अभी हमको पता नहीं है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर 8 CO2, 8 moles of CO2, then 0.9 moles of carbon monoxide, then 8.8 moles of oxygen, and 82.3 moles of nitrogen. And obviously apart from this, wet flue gas will also be present, that is water vapor will also be present in certain amount. अब उस water vapor का कितने moles बनेंगे वो हमको अभी नहीं पता है, तो let us consider the number of moles of water vapors formed in the product of combustion is A. Okay, so this is the balanced chemical equation we have right now with us. Okay, अब यहाँ पर देखो, अगर हम 8.8% जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है 8.8% की, 0.008 होगी वो, ठीक है। मतलब हम चाहते तो 1 मोल के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते थे, बट हम अननेसेसरी इतने डेसिमल में नहीं ना जाते हुए मैंने यहाँ पर 100 मोल्स कंसीडर किया कि टोटल जो ड्राई फ्लू गैसेस फॉर्म हो रही है वो 100 मोल्स फॉर्म हो रही है। तो 100 मोल्स फॉर्म हो रही है टोटल ड्राई फ्लू गैस, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.9 मोल होंगे, ऑक्सीजन के 8.8 मोल होंगे और नाइट्रोजन के 82.3 मोल होंगे, ओके। तो किसी ने बुक में अगर आपको 100 मोल की जगह 1 मोल कंसीडर करके भी सॉल्व किया गया है तो उसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्यूल या एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर दिया हुआ नहीं है। तो हमको जो भी कैलकुलेशन करना है पर केजी ऑफ फ्यूल के हिसाब से ही करना है, ठीक है। नाउ in this equation we have 4 unknowns x, y, z and a, okay. Now in order to calculate the values of these 4 unknowns we need 4 equations, okay. 4 इक्वेशन हमको कैसे मिलेंगे, बाय कार्बन बैलेंस, बाय हाइड्रोजन बैलेंस, बाय ऑक्सीजन बैलेंस एंड बाय नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन द रिएक्टेंट अगर हम इक्वेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट तो उसको हम बोलेंगे कार्बन बैलेंस। Now what is number of atoms of carbon in the reactant, x. And what is the number of atoms of carbon in the product, 8 plus 0.9. So on solving we will get x is equal to 8.9. Now second thing, hydrogen balance. So left hand side हाइड्रोजन के कितने एटम्स है y, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है ट्वाइस ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो AH2। तो ये बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2a। अभी यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता तो उसको अभी फिलहाल एज इट इज रहने देंगे। देन वी कैन डू आइदर ऑक्सीजन बैलेंस और नाइट्रोजन बैलेंस। अगर हम पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो उस इक्वेशन में 2 अननोन आ जाएंगे, जेड भी और ए भी, और ए की वैल्यू अभी हमको पता नहीं है तो उसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट डायरेक्टली कम टू नाइट्रोजन बैलेंस। अब जब हम नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे तो हम N2 बैलेंस भी कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल का भी बैलेंस कर सकते हैं, या फिर सिंपली नाइट्रोजन के एटम को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट में जो है नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2, और प्रोडक्ट में जो नाइट्रोजन है वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अगर हम उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट भी करते हैं तो हमको दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो 2 अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। सो बेटर ये है कि उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही बैलेंस करें। सो बाय N2 बैलेंस Z into 3.76 is equal to 82.3. So on solving we will get Z is equal to 21.888. Okay. Now finally oxygen balance. अब ऑक्सीजन को O2 को बैलेंस करना है या सिंपली O का बैलेंस करना है देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल है। राइट हैंड साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन मॉलिक्यूल, बट यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में एटम है और वाटर में भी एटम है। तो यहाँ पर हमको बेटर यही रहेगा कि हम एटॉमिक ऑक्सीजन का बैलेंस करें। तो बाय O बैलेंस Z इंटू 2, ठीक है। मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, एटम है तो नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, Z इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0.9 इंटू 1 प्लस 8.8 इंटू 2 प्लस A इंटू 1, ओके।
put the value of z in this equation, and also after rearranging the terms, we will get a is equal to 2 into 21.888 minus 16 plus 0.9 plus 17.6. So after solving, we will get a is equal to 9.276, and if we put the value of a in equation number 2, then what we will get? We will get the value of y as y is equal to 18.552. ओके, तो हमको चारों अननोन की वैल्यू मिल गई, x, y, z और a की. अब क्या करना है हमको? इक्वेशन नंबर 1 जो केमिकल इक्वेशन थी, इसमें इन चारों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे. देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज C8.9 H18.552 plus 21.888 O2 plus 82.3 N2 would give us 8 CO2 plus 0.9 CO plus 8.8 O2 plus 82.3 N2 plus 9.276 H2O. Okay. Now what was the first question? Composition of fuel. Okay. अभी हमको composition of fuel बताना है. तो एक्चुअली अभी हमको फ्यूल का फॉर्मूला मिला है. कंपोजिशन बताना है मतलब कंपोजिशन बाय मास बताना है कि उस फ्यूल में कितने परसेंट बाय मास कार्बन है, कितने परसेंट बाय मास हाइड्रोजन है. तो सबसे पहले तो सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि फ्यूल के फॉर्मूले को देख के C8.9 H18.552 इस तरीके का केमिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या किसी फ्यूल का? हमने तो अब तक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 या फिर ऑक्टेन, C8H18 ऐसे ही फ्यूल देखे थे. सर डेसिमल में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के और हाइड्रोजन के हो सकते हैं क्या? सो द आंसर इज यस. लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब हम वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को आपस में मिक्स कर दें. ठीक है, अगर सिंगल सिर्फ मीथेन है, सिर्फ ईथेन है, तो इस तरीके का फॉर्मूला नहीं मिलेगा. इसका ये जो डेसिमल क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मोर देन वन हाइड्रोकार्बन को मिक्स किए हमने. अब मीथेन और ईथेन को हम अगर मिक्स कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल एलपीजी में हम ब्यूटेन और प्रोपेन को मिक्स करेंगे, तो प्रोपेन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मास अलग होता है, ब्यूटेन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मास अलग होता है. तो उसके वजह से इन दोनों का कंबाइंड जो रिएक्शन बनेगा वो डेसिमल में बन सकता है. बिकॉज प्रोपेन और ब्यूटेन कितने भी परसेंटेज में मिक्स कर सकते हैं हम. ठीक है, तो उनके रेशो के हिसाब से ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेंज हो सकती है इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन. हाँ, अगर प्योर हाइड्रोकार्बन रहेगा तो वी विल गेट होल नंबर एज नंबर ऑफ एटम्स और होल नंबर इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फ्यूल. ओके, तो हमको यहाँ पर क्या करना है? फ्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैंने एक टेबल फॉर्म किया हूँ. Composition of fuel. So constituent here is C and hydrogen. Then second we have number of atoms in the fuel 8.9 and 18.552 and 18.552. अब यहाँ पर मैंने constituent में लिखा हूँ C and H2. Okay. Now what is the atomic mass of carbon? 12. Now what is atomic mass of hydrogen? 1. यहाँ पर गलती मत करना है. I am asking about atomic mass because we are considering number of atoms, not the molecule. Okay. तो एटॉमिक मास इसका हाइड्रोजन का 1 है. हम जनरली फ्यूल में का कंपोजिशन इस तरीके से लिखते हैं कि C इतना परसेंट है, H2 इतना परसेंट है. ऐसा लिखने का रीज़न क्या होता है? बिकॉज हाइड्रोजन नेचुरली एग्जिस्ट इन इट्स डायएटॉमिक फॉर्म लाइक ऑक्सीजन, ओके, एंड नाइट्रोजन, एंड कार्बन एंड सल्फर नेचुरली एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ लिखने का तरीका है कॉन्स्टिट्यूएंट का. एक्चुअली जो फ्यूल है वहाँ पर C और H के नंबर ऑफ एटम्स ही है. C के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 8.9. H के कितने एटम्स है? 18.552. तो व्हाट वुड बी टोटल मास? हमको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास निकालना है, तो पहले कार्बन का कितना मास है फ्यूल में और हाइड्रोजन का कितना मास है वो निकालना पड़ेगा. बट हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है, उससे हमको मास निकालना है. तो कैसे निकालेंगे टोटल मास? टोटल मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास पर एटम, दैट इज एटॉमिक मास. So what is atomic mass of carbon? It is 12, and for hydrogen it is 1. So multiplying 8.9 with 12 we will get 106.8, and multiplying 18.552 with 1 we will get 18.552. Now adding this total mass of carbon and hydrogen, it will be 125.352. Now for calculating percentage mass in mixture of carbon, simply we have to divide the mass of the carbon by total mass and multiply it by 100. So 106.8 divided by 125.352 into 100 would give us 85.2%, which is nothing but mass of carbon in the mixture. And similarly for hydrogen, 18.552 divided by 125.352 into 100, that is 14.8%. Okay, so finally what we get the answer?
composition of fuel by mass is C is equal to 85.2% and hydrogen is equal to 14.8%. Okay, now what is the second thing we have asked? Air fuel ratio. So what is air fuel ratio? It is nothing but mass of air used to the mass of fuel used. अब यहाँ पर जो एयर यूज हुआ है उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मीन्स हमको नाइट्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फ्यूल में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो कितना मास कंसीडर करेंगे उसके लिए आ जाते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो व्हाट वुड बी मास ऑफ एयर इन द फ्यूल? मास ऑफ एयर in the fuel would be mass of oxygen plus mass of nitrogen. Now what would be mass of oxygen? So 21.888 into molecular mass of O2, that is 32. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल O2 के यूज हो रहा है? 21.888। तो और क्योंकि मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो मास भी मॉलिक्यूलर लेना पड़ेगा। Similarly 82.3 into molecular mass of N2. Okay, so this will give us the mass of the air. And what about the mass of the fuel? Atomic mass of carbon into 8.9 plus atomic mass of hydrogen into 18.552. This will give us the mass of the fuel. So the number of moles of N2 into molecular mass of N2 plus number of moles of O2 into molecular mass of O2 divided by number of atoms of carbon into atomic mass of carbon plus number of atoms of hydrogen into atomic mass of hydrogen. Okay, so after solving what we will get the value of air fuel ratio as 23.971 kg of air per kg of fuel. So actually हम देखें तो mass of air and mass of the fuel दोनों kg में है, तो kg यूनिट कैंसिल होना चाहिए और ये एयर फ्यूल रेशियो यूनिट लेस आना चाहिए, बट नॉर्मली हम इसकी यूनिट को इस तरीके से लिखते हैं kg of air per kg of fuel. Now also we have to find the excess air supplied which is asked in the question. So in order to calculate the excess air, what is excess air? Excess air is nothing but the actual amount of air used minus the minimum theoretical amount of air used, that is stoichiometric air used. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम एक्चुअल एयर तो कहीं बात कर ही नहीं रहे, हम एयर फ्यूल रेशियो की बात कर रहे हैं या फिर हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं पर केजी ऑफ फ्यूल कर रहे हैं, तो हम स्टोइक्योमेट्रिक एयर ना निकालते हुए स्टोइक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो भी निकाले तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एक्सेस एयर यूज्ड। अब ये परसेंटेज एक्सेस एयर कैसे निकालेंगे? हमको पता है एक्सेस एयर क्या होता है, इट इज़ दी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर माइनस स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ एयर। अगर इस एक्सेस एयर को हम स्टोइक्योमेट्रिक एयर से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो that will be give us the percentage excess air. Okay, now how to find this stoichiometric air? So in order to calculate the stoichiometric air, we will use the standard formula of minimum amount of air required to completely burn 1 kg of fuel, which we have derived in the last lecture. Okay, here C, H, O and S represent amount of carbon, hydrogen, oxygen and sulfur present per kg of fuel. Okay, यहाँ पर कार्बन क्या है 85.2% है बाय मास, हाइड्रोजन कितना है 14.8% बाय मास पर केजी ऑफ फ्यूल। ये कैसे पता चला हमको? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फ्यूल से। तो अगर हम 1 kg फ्यूल कंसिडरेशन कर रहे हैं फॉर 1 kg ऑफ फ्यूल, देन व्हाट वुड बी द मास ऑफ कार्बन इन द फ्यूल? 0.852 and similarly what would be the mass of hydrogen in the fuel? 0.148 kg. So we will get the value of C and H. So we get the value of C and H. And in the fuel, since there is no oxygen and sulfur, so O and S would be 0. Now put the value of C and H in this equation and calculate the stoichiometric air fuel ratio. So after putting the value, we will get stoichiometric air as 15.026 kg of air per kg of fuel. Okay, because we have used mass of fuel as 1 kg. Therefore, excess air used is actual air minus stoichiometric air upon stoichiometric air into 100, that is 23.971 minus 15.026 upon 15.026 into 100. So after solving we will get 59.33% as excess air used. Okay, so this was simple question. Similarly we have to solve another question on combustion. So let's solve that question also. A sample of dry anthracite has following composition by mass: carbon 90%, hydrogen 3%, oxygen 2.5%, nitrogen 1%, sulfur 0.5% and ash 3%. Determine stoichiometric air fuel ratio, actual air fuel ratio and dry and wet analysis of product of combustion by mass and by volume when 20% excess air is supplied. तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने स्टेटमेंट
तो एक क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया उसमें और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। पिछले क्वेश्चन में हमको फ्यूल का कंपोजिशन अननोन था, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का कंपोजिशन हमें पता था। इस क्वेश्चन में हमको फ्यूल का कंपोजिशन दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का कंपोजिशन हमको निकालने के लिए बोला है, हमको पता नहीं। ओके, नाउ द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड हियर इज एंथ्रासाइड विच इज़ बेस्ट ग्रेड ऑफ कोल हैविंग वेरी हाई percentage composition of carbon. As you can see the percentage composition of carbon is 90%। और इसके अलावा यहाँ पर ऐश भी है 3% में, जो कि यूजलेस प्रोडक्ट है, वो जो कि कंबशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट करता नहीं है। नाइट्रोजन तो इनर्ट गैस ही है। ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल को बर्न करने के लिए हेल्प करता है, ऑक्सीडाइज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है ना, अब सबसे पहला सवाल इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हम इस इक्वेशन को सिंपली मास बैलेंस इक्वेशन से कोई केमिकल इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर प्योरली हाइड्रोकार्बन नहीं है और हमको एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला फ्यूल का पता नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्यूल में इतना परसेंट तो है, पर वो ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ है फ्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट में, ये हमको पता नहीं है। केमिकल फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो हम उसके लिए कंबशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जब हमको फ्यूल का केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता तो उसके लिए कंबशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन में पूछा है वो थियोरेटिकल कंबशन प्रोसेस है या एक्चुअल कंबशन प्रोसेस है, तो वो हम कैसे जज करेंगे? बाय सीइंग दी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। बट इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन तो दिए ही नहीं है, तो अब कैसे पता करेंगे? अब तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट ये दिया हुआ है कि वी हैव टू find the actual air fill ratio and dry and wet analysis of product of combustion by mass and by volume when 20% excess air is supplied। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारा इस तरीके से कुछ डेटा है नहीं कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हमको पता नहीं है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि कंबशन चैम्बर में जो प्रॉपर मिक्सचर हो रहा है, कंप्लीट कंबशन उनका हो रहा है, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। और क्योंकि एक्सेस एयर सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है एंड द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज थ्योरेटिकल कंबशन। बट क्योंकि एक्सेस एयर सप्लाई हो रही है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं इस केस में कि हम एयर टू फ्यूल, जो एयर और फ्यूल जो है प्रॉपरली मिक्स हुआ है और हमको कंप्लीट कंबशन मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कंसिडरिंग इट एज थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस। ओके, और थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस कंसिडर करने के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हम फॉर्म करेंगे। ओके, now for simplicity let us assume the mass of the fuel is 1 kg। ओके, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने सारे कैलकुलेशन पर केजी ऑफ फ्यूल किए थे, तो सबसे सिंपल बेस्ट यही रहेगा कि हम मास ऑफ द फ्यूल को 1 kg फिक्स कर दें। अब फ्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास दिया है और टोटल मास ऑफ द फ्यूल इज 1 kg। therefore ऑब्जर्विंग द परसेंटेज कंपोजिशन, what would be the mass of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and ash in the coal? It would be 0.9 kg carbon, 0.03 kg hydrogen, 0.025 kg oxygen, 0.001 kg nitrogen and 0.005 kg sulfur and ash is useless। okay, now अब हमने एक्सेस एयर सप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये एज्यूम कर चुके हैं कि जो हमारा कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है और एक्सेस एयर सप्लाई हो रही है तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन? CO2, O2, H2O and SO2 because sulfur is also present in the fuel, and obviously nitrogen तो form होगा as it is because it will act as inert gas। okay, अब क्योंकि हमारे पास केमिकल इक्वेशन है नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्योंकि फ्यूल के परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास हमको पता चल गया है, हमने 1 kg फ्यूल भी एज्यूम कर लिए, तो हम प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कौन कौन से बनेंगे वो भी ऑलमोस्ट हमको पता चल गया है, अंदाज़ा हो गया है। बट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कितने कितने अमाउंट में मिलेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? बिकॉज केमिकल इक्वेशन हमारे पास है नहीं तो हम मास बैलेंस कर नहीं सकते। सो वी नीड टू यूज़ बेसिक कंबशन इक्वेशंस, ओके, विच वी हैव सीन इन द लास्ट lecture। okay, so for complete combustion of 1 kg of anthracite the chemical reactions would be as follows। okay, so what is the first chemical reaction? Carbon plus oxygen gives carbon dioxide, and from the basic combustion equation we have seen that 1 kg of carbon requires 8/3 kg of oxygen in order to convert it into 11/3 kg of carbon dioxide। But here we do not have 1 kg of carbon, we have only 0.9 kg of carbon,
So in order to find the amount of carbon dioxide formed, simply multiply this equation with 0.9. So multiplying both sides by 0.9, what we will get? We will get 0.9 kg of carbon plus 2.4 kg of oxygen plus 3.3 kg of CO2. ये 2.4 कैसे आया? 8 by 3 into 0.9 is equal to 2.4 and 11 by 3 into 0.9 is equal to 3.3. Similarly, we can write second equation as H2 plus half O2 gives H2O. Okay. And from the basic combustion equation, we have seen that 1 kg of hydrogen requires 8 kg of oxygen to form 9 kg of water vapor. Now in the fuel we have only 0.03 kg of hydrogen. So multiply both sides by 0.03. So what we will get? 0.03 kg hydrogen plus 0.24 kg oxygen would give us 0.27 kg of water. Okay. Now third chemical equation, S plus O2 gives SO2. So 1 kg of sulfur plus 1 kg of O2 would give us 2 kg of SO2 from basic combustion equation. Now what is the percentage composition of sulfur in the fuel? 0.5%, that is 0.005 kg. Therefore multiplying both sides by 0.005 kg, what we will get? We will get 0.005 kg of sulfur plus 0.05 kg of oxygen, and that would give us 0.01 kg of sulfur dioxide. Okay. तो ये तीनों बेसिक कंबशन इक्वेशन हमने लिख चुके हैं. उसके अलावा और कोई इक्वेशन बन सकती है क्या? नाइट्रोजन जो है इनर्ट है तो रिएक्ट होगा नहीं ऑक्सीजन के साथ. एच जो है वो यूजलेस प्रोडक्ट है, वो कंबशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. ऐश किसको बोलते हैं? राख. जो कोयले को बर्न करने के बाद जो राख मिलती है हम उसको बोलते हैं ऐश पार्टिकल्स. ओके. और ऑक्सीजन तो खुद दूसरों को फ्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं. ठीक है. सो यही तीन इक्वेशन बनने वाली है यहाँ पर. ओके. Now in all these three equations, what is the actual amount of oxygen required? So total amount of oxygen required is 2.4 kg for carbon, 0.24 kg for oxygen and 0.005 kg of oxygen and 0.005 kg for sulfur. Okay. So adding these three values, what we will get? We will get the total oxygen required, 2.4 plus 0.24 plus 0.005, which will come out to be 2.645 kg. But in the question it is given that fuel contains 2.5% by mass of oxygen, therefore oxygen present in the fuel is 0.025 kg. तो क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑलरेडी फ्यूल में प्रेजेंट है तो वो हमको रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो उतने अमाउंट को हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे. सो नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वुड बी 2.645 माइनस 0.025 विच विल कम आउट टू बी 2.62 kg. ठीक है. तो अभी हमने इन सारी प्रोसेस करके ये चीज़ निकाल ली है कि ऑक्सीजन कितना लगने वाला है इस फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए. ओके. अब ये जो ऑक्सीजन हमको लगने वाला है हम ले कहाँ से रहे हैं? एयर से. कितने अमाउंट में ले रहे हैं? 2.62 kg ऑफ ऑक्सीजन. अब जब हम एयर से 2.62 kg ऑक्सीजन चाहिए तो उस हमको एयर में साथ ही साथ नाइट्रोजन मिलेगा. तो अगेन वी हैव टू यूज़ percentage composition by mass analysis of dry air, and as per that analysis what we get, 1 kg of oxygen plus 3.347 kg of nitrogen is equal to 4.347 kg of air. अगर मतलब एयर से अगर हमको 1 kg ऑक्सीजन चाहिए तो फ्रीली हमको 3.347 kg नाइट्रोजन उसके साथ ही साथ मिलता है. ठीक है. Now what is the actual amount of oxygen required in our case? It is 2.62. So multiply both sides by 2.62 in this equation. What we will get? 2.62 kg of oxygen plus 8.77 kg of nitrogen is equal to 11.39 kg of air. Okay. So net N2 present in air is 8.77 kg. Also the net amount of air required for complete combustion of 1 kg of fuel is 11.39 kg of air, because हमने जितना भी कैलकुलेशन किए हैं वो 1 kg of फ्यूल कंसीडर करके ही की है. तो इसका मतलब है हमने जो क्वांटिटी एयर की निकाले वो मिनिमम और थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर निकाले हैं पर 1 kg ऑफ फ्यूल. तो इसका क्या मतलब है? व्हाट वुड बी द स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो? इट वुड बी 11.391. ओके. which is the ratio amount of air used to the amount of fuel used. Amount of air used here is 11.39 and amount of fuel used is 1 kg. Okay, so it will be 11.39 kg. अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो निकालने के लिए. ओके. अब इसी स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो को हम अल्टरनेटिव मेथड से भी निकाल सकते हैं. व्हाट इज द अल्टरनेटिव मेथड? यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फ्यूल. So stoichiometric air can also be calculated by this formula. Okay.
What is CHONS here? It is the percentage composition of carbon, hydrogen, oxygen and sulfur by mass present in the fuel. Now putting the values of CHONS and solving this, we will get stoichiometric air is 11.391 kg. Okay, and since here the mass of the fuel is 1 kg, therefore stoichiometric air fuel ratio would be 11.391 kg of air per kg of fuel. अब सवाल ये है कि जब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके इतने आसानी से स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो निकाल सकते थे, तो क्या ज़रूरत थी इतना सब बेसिक कंबशन इक्वेशन को सॉल्व करने की? तो उसका रीज़न ये है कि हमको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन फाउंड बाय मास एंड बाय वॉल्यूम हमको चाहिए था. तो इन इक्वेशन के ज़रिए हमने कितने केजी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया. इट इज़ का 3.3 kg. कितना केजी वाटर वेपर बन रहा है ये कैलकुलेट कर लिए. कितना केजी सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है ये कैलकुलेट कर लिया हमने. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी हैव कंसीडर बेसिक कंबशन इक्वेशन. नाउ हमको CO2 कितना बन रहा, H2O कितना बना, SO2 कितना बना, ये तो पता चल गया. बट हमारा ये जो कैलकुलेशन अब तक का हुआ है वो ये कंसीडर करके हुआ है कि हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई की है. ओके, नाउ एक्चुअली वी हैव सप्लाइड 20% एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर. ओके, तो अगर हम 20% एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करेंगे तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन supplied and what would be the amount of oxygen supplied and what will be the amount of air supplied. So keep in mind one thing, if excess air is supplied then the product of combustion will be CO2, H2O, SO2, N2 and excess O2. Okay, now by excess O2 what do we mean? Excess O2 is nothing but actual O2 minus minimum amount of O2 required. Okay, excess O2 क्यों? Because जो minimum amount of oxygen जो लग रही थी वो यूटिलाइज हो गई CO2, H2 और SO2 में. अब जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो एज इट इज़ हमको प्रोडक्ट में मिल जाएगा. तो हमको N2 और एक्सेस O2 भी कैलकुलेट करना है बिकॉज दीज टू प्रोडक्ट्स ऑल्सो बी फॉर्म्ड आफ्टर द कंबशन. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस N2 and O2? Here excess air uses 20%. So actual air is 1.2 times of stoichiometric air. Therefore actual air is 1.2 into 11.391 which is equal to 13.67 kg. Okay. Therefore, actual air fuel ratio would be 13.67 kg of air per kg of fuel. Why? Because we have considered only 1 kg of fuel. Okay. Now, if actual air uses 13.67, then what would be the actual nitrogen supplied? That would be 1.2 times the 8.77 kg. That is the amount of nitrogen in the stoichiometric air into 1.2. So it will come out to be 10.524 kg. Similarly, amount of oxygen in the stoichiometric air into 1.2 will give us the amount of oxygen supplied actually. Okay, it is coming out to be 3.144 kg. Okay, therefore excess O2 supplied is equal to 3.144 minus 2.62 kg. इतने अमाउंट में एक्सेस एयर सप्लाइड हुई. 2.62 तो फ्यूल को बर्न करने के लिए यूज हो गई और 3.144 में से बची जो है 0.524 डेट वुड बी एक्सेस O2 सप्लाई एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज इट इज़ इन द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. तो इसी के साथ हमको जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है CO2, H2O, SO2, N2 and O2 उनका मास मिल चुका है. तो पांचों का क्योंकि हमको मास मिल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ड्राई एनालिसिस और वेट एनालिसिस हम कर सकते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. तो ड्राई एंड वेट एनालिसिस ऑफ कंबशन प्रोडक्ट बाय मास. तो पहले कॉलम में हम सारे प्रोडक्ट्स लिख देंगे CO2, H2O, SO2, O2, N2. देन देयर मास कितने मास में फॉर्म हुए तो 3.3, 0.27, 0.01, 0.524 एंड 10.524. नाउ वी हैव टू डू परसेंटेज mass by wet analysis and percentage mass by dry analysis. तो what is the difference between wet analysis and dry analysis? तो ऑर्सेट गैस एनालाइजर में भी हमने देखे थे कि वो ड्राई फ्लू गैस का एनालिसिस करता है, मतलब वो अपने एनालिसिस में वाटर वेपर को कंसीडर नहीं करता, यानी H2O को कंसीडर नहीं करता था. वो भी वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं. जब हम वेट एनालिसिस करेंगे तो वाटर वेपर को कंसीडर करेंगे और जब ड्राई एनालिसिस करेंगे तो वाटर वेपर को कंसीडर नहीं करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन सारे मासेस को ऐड कर देंगे. व्हाट वुड बी द टोटल मास ऑफ द वेट प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन? इट वुड बी सम ऑफ ऑल दीज 5 मासेस. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 14.628. ओके, और अगर हमको ड्राई एनालिसिस करना है तो H2O को छोड़ के बाकी चारों चीज़ों का हम एडिशन करेंगे या फिर
वेट मास में से H2O के मास को अगर माइनस कर दे तो हमको मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस मिल जाएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी 14.358 kg. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय वेट एनालिसिस and how to calculate percentage mass by dry analysis. So percentage mass of CO2 in the combustion product by mass can be calculated as 3.30, that is mass of carbon dioxide, divided by mass of wet gases 14.628. Similarly, mass of water vapor 0.27 divided by 14.628 into 100, 1.85. Similarly, we can find the percentage mass by wet analysis for sulfur dioxide, oxygen and nitrogen. Now in dry analysis, how to calculate percentage mass by dry analysis for carbon dioxide? 3.30 divided by 14.358 into 100. Similarly, water के लिए तो रहेगा नहीं कर सकते dry analysis. SO2 0.01 divided by 14.358 into 100. So in this way we can calculate the percentage mass by wet analysis and dry analysis for all the products. एंड ये जो कॉलम्स है लास्ट के दो, उन दोनों का सम जो है 100% आना चाहिए. अगर दोनों 100% आ रहे हैं तो हम जज कर सकते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व की है वो सही है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ड्राई इन वेट एनालिसिस ऑफ कंबशन प्रोडक्ट बाय वॉल्यूम. हमको क्वेश्चन में दोनों ही पूछा है, बाय मास भी बाय वॉल्यूम भी. तो उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, हमको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके. Now again considering the products of combustion CO2, H2, SO2, O2 and 2 and their masses in kg. Now in order to convert gravimetric analysis into volumetric analysis we have to consider the molecular masses and number of moles. अब सवाल ये होता है कि कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे मास है और हमको बाय वॉल्यूम निकालना है, तो हम इसको डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम क्यों नहीं निकालते. तो उसका आंसर ये है कि हम तो यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम का रेशो ले रहे हैं ना हम यहाँ पर. एंड V1 by V2 इज नथिंग बट N1 by N2 एज पर एवोगैड्रोस लॉ. ओके, तो हम वॉल्यूम लिखने की जगह नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18, सल्फर डाइऑक्साइड 64, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 28. देयरफॉर considering its number of moles, so what is the formula for number of moles? Mass upon molecular mass. So 3.30 divided by 44, 0.075. तो ये हमको number of moles of carbon dioxide मिल गया. Similarly 0.27 divided by 18, 0.015. And similarly we can find the number of moles for SO2, O2 and N2. Now what we have to do, we have to add the number of moles of all the products of combustion. So after adding we are getting the value as 0.4823. So this is the number of moles of wet products formed in combustion, and if we subtract number of mole of water from the number of moles of wet products, then we will get the number of moles of dry flue gas in the combustion product. Okay, और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मास एनालिसिस की है वैसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी करेंगे. If you want to calculate percentage volume by wet analysis for carbon dioxide, then what we have to do? Number of moles of carbon dioxide 0.072 divided by total number of moles of wet gases in the mixture 0.4823 into 100. Similarly for water vapor 0.015 divided by 0.4823 into 100. It will come out to be 3.11%, and similarly we can calculate it for SO2, O2 and N2. And after adding all these 5 values we should get 100% total. Okay, so similarly for percentage volume by dry analysis we did not need to consider water, so we need to consider number of moles of dry flue gases only. Okay, so for calculating the percentage volume of CO2, number of moles of CO2 0.075 divided by 0.4673 into 100, we will get 16.05%. Similarly for SO2 0.00015 divided by 0.4673 into 100, 0.033%. and similarly we can calculate the value of percentage volume by dry analysis for oxygen and nitrogen also. So I hope आज के दोनों ही प्रॉब्लम्स और बाकी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझ में आया होगा. If you still have any doubt you can post it in the comment section. If you understand everything then please like my video and share it with your friends, and for getting more updates regarding new videos in this channel please subscribe to my YouTube channel. Hi, it's me.
Thank you.